हम पढ़ेंगे लेविटिकस 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर। हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्शन में से, फिर पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा हमारी मदद कर, हमारे आत्मा में जोर दे, हमारे शरीर और हमारा प्राण दुष्ट शक्तियों को रेजिस्ट करने वाला बल हमको दे। हमारे मन की सोच और विचारों में जो भी दूषितपन, करप्शन, कोई मिलावट, किसी भी प्रकार से मिसगाइड, मिसलीड, कुछ भी ऐसा करप्शंस हमारे सोच में आने जाने का रास्ता है, उस रास्ते को हमें दिखा ताकि हम उसके अंदर सुधार ले सके। मेरे परमेश्वर, हमारा हर एक बात जो पिता परमेश्वर हमको करना है उसे तेरे वचन के आधार पर पिता हम पूरा करते जाएंगे। तेरा परमेश्वर वचन एस्टैब्लिश होने के लिए हम अपने आप को समर्पित करते हैं। थैंक यू फादर गॉड। अब फादर गॉड, आपके वचनों में गहरी बातें हैं जो हम खोना नहीं चाहते हैं। पवित्र परमेश्वर पिता, तेरे आत्मा से हमें समझा और हमें पिता तेरा बल भर, तेरी गहरी दोस्ती वचनों के अंदर से हमें कर। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। Leviticus chapter 1. The burnt offerings of the herd, of the flocks, of the fowls. First verse. And the Lord called unto Moses and spake unto him out of the tabernacle of the congregation, saying, Speak unto the children of Israel, and say unto them, If any man of you bring an offering unto the Lord, ye shall bring you offering of the cattle, even of the herd and of the flock. If his offering be a burnt sacrifice of the herd, let him offer a male without blemish. He shall offer it of his own voluntary will at the door of the tabernacle of the congregation before the Lord, and he shall put his hand upon the head of the burnt offering, and it shall be accepted for him to make atonement for him, and he shall kill the bullocks before the Lord. And the priests Aaron's sons shall bring the blood and sprinkle the blood round about upon the altar that is by the door of the tabernacle of the congregation, and he shall flay the burnt offering and cut it into his pieces. And the sons of Aaron the priest shall put fire upon the altar and lay the wood in order upon the fire. And the priests Aaron's sons shall lay the parts, the head and the fat in order upon the wood that is on the fire which is upon the altar. But his inwards and his legs shall he wash in water, and the priest shall burn all on the altar to be a burnt sacrifice, an offering made by fire of a sweet savour unto the Lord. And if his offering be of the flocks, namely of the sheep or of the goats, or for a burnt sacrifice, he shall bring it a male without blemish, and he shall kill it on the kill it on the side of the altar northward before the Lord. And the priests Aaron's sons shall sprinkle his blood round about upon the altar, and he shall cut it into his pieces with his head and his fat, and the priest shall lay them in order on the wood that is on the fire which is upon the altar. But he shall wash the inwards and the legs with water, and the priest shall bring it all and burn it upon the altar. It is a burnt sacrifice, an offering made by fire of a sweet savour unto the Lord. And if the burnt sacrifice for his offering to the Lord be of fowls, then he shall bring his offering of turtle doves or of young pigeons, and the priest shall bring it unto the altar and wring off his head and burn it on the altar, and the blood thereof shall be wrung out at the side of the altar. And he shall pluck away his crop with his feathers and cast it beside the altar on the east part by the place of the ashes.
And he shall cleave it with the wings thereof, but shall not divide it asunder. And the priest shall burn it upon the altar, upon the wood that is upon the fire. It is a burnt sacrifice, an offering made by fire, of a sweet savour unto the Lord. Chapter 2. The meat offering of flour with oil and incense. The oblation of first fruits not to be burnt. The salt of the meat offering. First verse. And when any will offer a meat offering unto the Lord, his offering shall be of fine flour, and he shall pour oil upon it, and put frank incense thereon, and he shall bring it to Aaron's sons, the priests, and he shall take thereout his handful of the flour thereof and of the oil thereof with all the frank incense thereof, and the priest shall burn the memorial of it upon the altar to be an offering made by fire of a sweet savour unto the Lord. And the remnant of the meat offering shall be Aaron's and his sons. It is a thing most holy of the offerings of the Lord made by fire. And if thou bring an oblation of a meat offering, baken in the oven, it shall be unleavened cakes of fine flour mingled with oil, or unleavened wafers anointed with oil. And if thy oblation be a meat offering baken in a pan, it shall be of fine flour unleavened mingled with oil. Thou shalt part it in pieces and pour oil thereon. It is a meat offering. And if thy oblation be a meat offering baken in the frying pan, it shall be made of fine flour with oil. And thou shalt bring the meat offering that is made of these things unto the Lord, and when it is presented unto the priest, he shall bring it unto the altar. And the priest shall take from the meat offering a memorial thereof, and shall burn it upon the altar. It is an offering made by fire, of a sweet savour unto the Lord. And that which is left of the meat offering shall be Aaron's and his sons. It is a thing most holy of the offerings of the Lord made by fire. No meat offering which ye shall bring unto the Lord shall be made with leaven, for ye shall burn no leaven, nor any honey, in any offering of the Lord made by fire. As for the oblation of the first fruits, ye shall offer them unto the Lord, but they shall not be burnt on the altar for a sweet savour. And every oblation of thy meat offering shalt thou season with salt, neither shalt thou suffer the salt of the covenant of thy God to be lacking from thy meat offering. With all thine offerings thou shalt offer salt. And if thou offer a meat offering of thy first fruits unto the Lord, thou shalt offer for the meat offering of thy first fruits green ears of corn dried by the fire, even corn beaten out of full ears. And thou shalt put oil upon it, and lay frank incense thereon. It is a meat offering. And the priest shall burn the memorial of it, part of the beaten corn thereof, and part of the oil thereof, with all the frank incense thereof. It is an offering made by fire unto the Lord. Chapter 3. The peace offering of the herd of the flock, whether a lamb or a goat. First verse. And if his oblation be a sacrifice of peace offering, if he offer it of the herd, whether it be a male or female,
He shall offer it without blemish before the Lord, and he shall lay his hand upon the head of his offering and kill it at the door of the tabernacle of the congregation. And Aaron's sons, the priest, shall sprinkle the blood upon the altar round about, and he shall offer of the sacrifice of the peace offering, an offering made by fire unto the Lord, the fat that covereth the inwards, and all the fat that is upon the inwards, and the two kidneys, and the fat that is on them, which is by the flanks, and the caul above the liver, with the kidneys, it shall he take away. And Aaron's sons shall burn it on the altar upon the burnt sacrifice, which is upon the wood that is on the fire. It is an offering made by fire of a sweet savour unto the Lord. And if his offering for a sacrifice of peace offering unto the Lord be of the flock, male or female, he shall offer it without blemish. If he offer a lamb for his offering, then shall he offer it before the Lord. And he shall lay his hand upon the head of his offering, and kill it before the tabernacle of the congregation, and Aaron's sons shall sprinkle the blood thereof round about upon the altar. And he shall offer of the sacrifice of the peace offering, an offering made by fire unto the Lord, the fat thereof, and the whole rump, it shall he take off hard by the backbone, and the fat that covereth the inwards, and all the fat that is upon the inwards, and the two kidneys, and the fat that is upon them, which is by the flanks, and the caul about the liver, with the kidneys, it shall he take away. And the priest shall burn it upon the altar. It is the food of the offering made by fire unto the Lord. And if his offering be a goat, then he shall offer it before the Lord, and he shall lay his hand upon the head of it, and kill it before the tabernacle of the congregation, and the sons of Aaron shall sprinkle the blood thereof upon the altar round about. And he shall offer thereof his offering, even an offering made by fire unto the Lord, the fat that covereth the inwards, and all the fat that is upon the inwards, and the two kidneys, and the fat that is upon them, which is by the flanks, and the caul above the liver, with the kidneys, it shall he take away. And the priest shall burn them upon the altar. It is the food of the offering made by fire for a sweet savour. All the fat is the Lord's. It shall be a perpetual statute for your generations throughout all your dwellings, that ye eat neither fat nor blood. लेव्य व्यवस्था पहले अध्याय से पढ़ेंगे। 1, 2, 3 अध्याय हम पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। होम बलि की विधि, पहला अध्याय पहले वचन से। यहोवा ने मूसा को बुलाकर मिलाप वाले तंबू में से उससे कहा, इस्राएलियों से कहे कि तुम में से यदि कोई मनुष्य यहोवा के लिए पशु का चढ़ावा चढ़ाए, तो उसका बलि पशु गाय, बैलों अथवा भेड़ बकरियों में से एक का हो। यदि वह गाय बैलों में से होम बलि करे, तो निर्दोष नर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर चढ़ाए कि यहोवा उसे ग्रहण करे। वह अपना हाथ होम बलि पशु के सिर पर रखे, और वह उसके लिए प्रायश्चित करने का ग्रहण किया जाएगा। तब वह उस बछड़े को यहोवा के सामने बलि करे, और हारून के पुत्र जो याजक है, वे लहू को समीप ले जाकर उस वेदी के चारों ओर छिड़के जो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर है। फिर वह होम बलि पशु की खाल निकालकर उस पशु को टुकड़े टुकड़े करे। तब हारून याजक के पुत्र वेदी पर आग रखे, और आग पर लकड़ी सजाकर रखे, और हारून के पुत्र जो याजक है, वे सिर और चर्बी समेत पशु के टुकड़ों को उस लकड़ी पर जो वेदी की आग पर होगी सजा कर रखे, और वह उसकी अंतड़ियों और पैरों को जल से धोए।
तब याजक सबको वेदी पर जलाए कि वह होम बलि यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। यदि वह भेड़ों या बकरों की होम बलि चढ़ाए तो निर्दोष नर को चढ़ाए, और वह उसको यहोवा के आगे वेदी के उत्तरी ओर बलि करे। और हारून के पुत्र जो याजक है वे उसके लहू को वेदी के चारों ओर छिड़के, और वह उसको टुकड़े टुकड़े करे और सिर और चर्बी को अलग करे, और याजक इन सबको उस लकड़ी पर सजा कर रखे जो वेदी की आग पर होगी, और वह उसकी अंतड़ियों और पैरों को जल से धोए। और याजक सबको समीप ले जाकर वेदी पर जलाए कि वह होम बलि और यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। यदि वह यहोवा के लिए पक्षियों की होम बलि चढ़ाए तो पंडुकों या कबूतरों का चढ़ावा चढ़ाए। याजक उसको वेदी के समीप ले जाकर उसका गला मरोड़ के सिर को धड़ से अलग करे और वेदी पर जलाए, और उसका सारा लहू उस वेदी के बाजू पर गिराया जाए, और वह उसकी गल थैली को मल सहित निकालकर वेदी के पूर्व की ओर राख डालने के स्थान में फेंक दे, और वह उसको पंखों के बीच से फाड़े पर अलग अलग न करे। तब याजक उसको वेदी पर उस लकड़ी के ऊपर रखकर जो आग पर होगी जलाए कि वह होम बलि और यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। अन्न बलि की विधि 2 अध्याय पहले वचन से। जब कोई यहोवा के लिए अन्न बलि का चढ़ावा चढ़ाना चाहे तो वह मैदा चढ़ाए और उस पर तेल डालकर उसके ऊपर लोबान रखे, और वह उसको हारून के पुत्रों के पास जो याजक है लाए, और वह अन्न बलि के तेल मिले हुए मैदे में से इस तरह अपनी मुट्ठी भर कर निकाले कि सब लोबान उसमें आ जाए, और याजक उन्हें स्मरण दिलाने वाले भाग के लिए वेदी पर जलाए कि यह यहोवा के लिए सुखदायक सुगंधित हवन ठहरे। और अन्न बलि में से जो बचा रहे वह हारून और उसके पुत्रों का ठहरे। यह यहोवा के हवनों में से परम पवित्र भाग होगा। जब तू अन्न बलि के लिए तंदूर में पकाया हुआ चढ़ावा चढ़ाए तो वह तेल से सने हुए अखमीरी मैदे के फुलकों या तेल से चुपड़ी हुई अखमीरी चपातियों का हो। और यदि तेरा चढ़ावा तवे पर पकाया हुआ अन्न बलि हो तो वह तेल से सने हुए अखमीरी मैदे का हो। उसको टुकड़े टुकड़े करके उस पर तेल डालना, तब वह अन्न बलि हो जाएगा। और यदि तेरा चढ़ावा कढ़ाई में तला हुआ अन्न बलि हो तो वह मैदे से तेल में बनाया जाए। और जो अन्न बलि इन वस्तुओं में से किसी का बना हो उसे यहोवा के समीप ले जाना, और जब वह याजक के पास लाया जाए तब याजक उसे वेदी के समीप ले जाए, और याजक अन्न बलि में से स्मरण दिलाने वाला भाग निकालकर वेदी पर जलाए कि वह यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। और अन्न बलि में से जो बचा रहे वह हारून और उसके पुत्रों का ठहरे। वह यहोवा के हवनों में परम पवित्र भाग होगा। कोई अन्न बलि जिसे तुम यहोवा के लिए चढ़ाओ खमीर मिलाकर बनाया न जाए। तुम कभी हवन में यहोवा के लिए खमीर और मधु न जलाना। तुम इनको पहली उपज का चढ़ावा करके यहोवा के लिए चढ़ाना, पर वे सुखदायक सुगंध के लिए वेदी पर चढ़ाया न जाए। फिर अपने अन्न बलियों को नमकीन बनाना, और अपना कोई अन्न बलि अपने परमेश्वर के साथ बंधी हुई वाचा के नमक से रहित होने न देना। अपने सब चढ़ावों के साथ नमक भी चढ़ाना। यदि तू यहोवा के लिए पहली उपज का अन्न बलि चढ़ाए तो अपनी पहली उपज के अन्न बलि के लिए आग में भुनी हुई हरी हरी बालें अर्थात हरी हरी बालों को मींज के निकाल लेना। तब अन्न को चढ़ाना और उसमें तेल डालना और उसके ऊपर लोबान रखना, तब वह अन्न बलि हो जाएगा। और याजक मींज कर निकाले हुए अन्न को और तेल को और
सारे लोबान को स्मरण दिलाने वाला भाग करके जला दे, वह यहोवा के लिए हवन ठहरे। मेल बलि की विधि 3 अध्याय पहले वचन से। यदि उसका चढ़ावा मेल बलि का हो और यदि वह गाय बैलों में से किसी को चढ़ाए, चाहे वह पशु नर हो या मादा, तो जो निर्दोष हो उसी को वह यहोवा के आगे चढ़ाए, और वह अपना हाथ अपने चढ़ावे के पशु के सिर पर रखे और उसको मिलाप वाले तंबू के द्वार पर बलि करे। और हारून के पुत्र जो याजक है, वे उसके लहू को वेदी के चारों ओर छिड़के, और वह मेल बलि में से यहोवा के लिए हवन करे, अर्थात जिस चर्बी से अंतड़ियाँ ढपी रहती है और जो चर्बी उनमें लिपटी रहती है वह भी, और दोनों गुर्दे और उनके ऊपर की चर्बी जो कमर के पास रहती है, और गुर्दों समेत कलेजे के ऊपर की झिल्ली, इन सबों को वह अलग करे। तब हारून के पुत्र इनको वेदी पर उस होम बलि के ऊपर जलाए, जो उन लकड़ियों पर होगी जो आग के ऊपर है, कि यह यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। यदि यहोवा के मेल बलि के लिए उसका चढ़ावा भेड़ बकरियों में से हो, तो चाहे वह नर हो या मादा, पर जो निर्दोष हो उसी को वह चढ़ाए। यदि वह भेड़ का बच्चा चढ़ाता हो तो उसको यहोवा के सामने चढ़ाए, और वह अपने चढ़ावे के पशु के सिर पर हाथ रखे और उसको मिलाप वाले तंबू के आगे बलि करे, और हारून के पुत्र उसके लहू को वेदी के चारों ओर छिड़के। तब मेल बलि में से चर्बी को यहोवा के लिए हवन करे, अर्थात उसकी चर्बी भरी मोटी पूंछ को वह रीढ़ के पास से अलग करे, और जिस चर्बी से अंतड़ियाँ ढंपी रहती है और जो चर्बी उनमें लिपटी रहती है, उन और दोनों गुर्दे और जो चर्बी उनके ऊपर कमर के पास रहती है, और गुर्दे समेत कलेजे के ऊपर के झिल्ली, इन सबों को वह अलग करे, और याजक इन्हें वेदी पर जलाए। यह यहोवा के लिए हवन रूपी भोजन ठहरे। यदि यहोवा के मेल बलि के लिए उसका चढ़ावा भेड़ बकरियों में से हो, तो चाहे वह नर हो या मादा, पर जो निर्दोष हो उसी को वह चढ़ाए। यदि वह भेड़ का बच्चा चढ़ाता हो तो उसको यहोवा के सामने चढ़ाए, और वह अपने चढ़ावे के पशु के सिर पर हाथ रखे और उसको मिलाप वाले तंबू तंबू के आगे बलि करे, और हारून के पुत्र उसके लहू को वेदी के चारों ओर छिड़के। तब मेल बलि में से चर्बी को यहोवा के लिए हवन करे, अर्थात उसकी चर्बी भरी मोटी पूंछ को वह रीढ़ के पास से अलग करे, और जिस चर्बी से अंतड़ियाँ ढपी रहती है और जो चर्बी उनमें लिपटी रहती है, और दोनों गुर्दे और जो चर्बी उनके ऊपर कमर के पास रहती है, और गुर्दों समेत कलेजे के ऊपर की झिल्ली, इन सबों को वह अलग करे, और याजक इन्हें वेदी पर जलाए। यह यहोवा के लिए हवन रूपी भोजन ठहरे। यदि वह बकरा या बकरी चढ़ाए, 12 वचन से आगे, तो उसे यहोवा के सामने चढ़ाए, और वह अपना हाथ उसके सिर पर रखे और उसको मिलाप वाले तंबू के आगे बलि करे, और हारून के पुत्र उसके लहू को वेदी के चारों ओर छिड़के। तब वह उसमें से अपना चढ़ावा यहोवा के लिए हवन करके चढ़ाए, अर्थात जिस चर्बी से अंतड़ियाँ ढपी रहती है और जो चर्बी उनमें लिपटी रहती है वह भी, और दोनों गुर्दे और जो चर्बी उनके ऊपर कमर के पास रहती है, और गुर्दों समेत कलेजे के ऊपर की झिल्ली, इन सबों को वह अलग करे, और याजक इन्हें वेदी पर जलाए। यह हवन रूपी भोजन है जो सुखदायक सुगंध के लिए होता है, क्योंकि सारी चर्बी यहोवा की है। यह तुम्हारे निवासों में तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी के लिए सदा की विधि ठहरेगी कि तुम चर्बी और लहू कभी न खाओगे।
पवित्र पिता परमेश्वर, आपके वचन के अनुसार हमें फिट एंड फिक्स कीजिए। ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में हमको लेकर आइए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। एक्ट्स 17 चैप्टर 10 वर्स से 21 वर्स। भजन संहिता 14 चैप्टर 15 चैप्टर 16 चैप्टर। प्रेरितों के काम 17 अध्याय 10 वचन से 21 वचन। भजन संहिता 14 अध्याय 15 अध्याय 16 अध्याय। हम पढ़ेंगे इंग्लिश में, हम पढ़ेंगे अकेले में, पर्सनल व्यक्तिगत समय के अंदर। जब इसे पढ़ेंगे तो हमारे जो सुधार करने का अवस्था है, परमेश्वर चाहता है कि हमें जो भी बदलाव करना चाहता है वो वचन को दिखा दिखा कर हमें हमारे मन के अंदर से वो सोच बना के वचन को देकर हमें उसको कन्विंस करेगा, हमें वो मनाएगा कि हमने उस वचन को मानना है और हम में सुधार आ जाएगा। ये होना चाहिए, इसके लिए हमने फैसला किया है कि हम व्यक्तिगत समय में, पर्सनल टाइम में इसे पढ़ेंगे। लेकिन आप ऐसे जब पढ़ना चाहते हो वैसे आप पढ़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपने भी इसे इसी तरह से व्यक्तिगत समय में ही पढ़ना है। आप अपने तरीके से इसे पढ़ सकते हैं। निश्चित यही करना है कि परमेश्वर के आत्मा ने हमको सिखाना है, निश्चित परमेश्वर के आत्मा का हमने लाभ उठाना है। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह हमें फिट एंड फिक्स कीजिए। ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में हमको लेकर आइए। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन।